ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને ખોટા કેસમાં ફસાવવામાં આવ્યા હોય અને તે હાલમાં જેલમાં છે, ત્યારે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં નેત્રંગ ખાતે મહાજનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ જનસભામાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવત માન તથા ગુજરાત રાજ્યના આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો અને ચૈતર વસાવાના પત્ની વર્ષા વસાવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને હજારોની સંખ્યામાં ત્યાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી। ત્યારે આ જનસભામાં વર્ષા વસાવાએ ચૈતર વસાવાએ જે પત્ર કે ચિઠ્ઠી મોકલી હતી તે વાંચી સંભળાવી હતી। ત્યારે ચૈતર વસાવાએ પ્રજાને શું સંદેશો આપ્યો તે જુઓ। સૌને નમસ્કાર। હવે થોડી શાંતિ રાખજો। હવે આપણે જે દિવસની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે દિવસ આજે આવી ગયો છે। આપણી વચ્ચે બે સીએમ પધાર્યા છે, એટલે ચૈતરભાઈના સમર્થનમાં બધી પબ્લિક પણ આવી છે। એટલે આ સભામાં ઉપસ્થિત દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદભાઈ કેજરીવાલ સાહેબ, પંજાબના મુખ્યમંત્રી શ્રી માન ભગવંત સાહેબ આપણી સભામાં હાજર છે। હવે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણી વચ્ચે ધારાસભ્ય તો નથી, પણ હું જ્યારે 2 દિવસ પહેલા મુલાકાત માટે ગઈ હતી તો સાહેબ દ્વારા મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે, ભલે હું ત્યાં હાજર નથી પણ મારા વતી મારા લોકોને મેસેજ પહોંચાડજો, એ વતી હું આજે એટલે આપણા જે લોકોને મેસેજ પહોંચાડવા કીધો છે આપણા ધારાસભ્યએ, ભલે તે જેલમાં છે આજે, પણ એમણે તમને બધાને મેસેજ આપવા કીધો છે, એટલે આજે હું તમને મેસેજ સંભળાવીશ। ચૈતરભાઈ નથી પણ એમના વતી હું તમને સંભળાવીશ, તો થોડી શાંતિ રાખજો અને શાંતિથી સાંભળજો। આ સાહેબનો મેસેજ છે એટલે હું તમને સંભળાવું છું, તો થોડી શાંતિ રાખજો। આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્યનો મેસેજ છે એટલે તમે બધા સાંભળજો। મારા લોકોને મારો સંદેશ। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબના સરદાર મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માન સાહેબજી, મહાસચિવના સંદીપ પાઠકજી, પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, પૂર્વ પ્રમુખ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, મહામંત્રી મોનજભાઈ સરાઠિયા, કાર્યકારી પ્રદેશ પ્રમુખ ધારાસભ્યશ્રીઓ, તમામ પદાધિકારીઓ તેમજ મોટી સંખ્યામાં અહીં ઉપસ્થિત યુવાનો, વડીલો અને માતા બહેનોને ચૈતર વસાવાના જય આદિવાસી, જય જોહાર। 2 મહિનાથી આપની વચ્ચે આપના સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હાજર નહીં રહેવા બદલ આપ સૌની હું માફી ચાહું છું। 2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 1 લાખથી પણ વધુ મત, 56% મત આપીને આપ પાર્ટીએ મને મારા પર ભરોસો રાખી અને વિશ્વાસ મૂકવામાં આવ્યો। ત્યારથી બીજા ધારાસભ્યની જેમ ઘરે બેસી રહેવા કરતા હું અને મારી ટીમ સતત લોકોની વચ્ચે રહીને લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે। ચૂંટાયા પછીના 1 વર્ષના સમય દરમિયાન લોકોને ન્યાય અપાવવા સડકથી સદન સુધીના સરકાર સામે બાયો ચઢાવીને મેં અવાજ ઉઠાવ્યો છે, જેમ કે શાળાઓમાં પૂરતા ઓરડાઓ નથી, શિક્ષકો હોવા જોઈએ, હોસ્પિટલોમાં પૂરતા સાધનો, સ્ટાફ નથી, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પૂરતી સુવિધાઓ નથી, પૂરતી લાઇટો નથી, સારા રોડ રસ્તા નથી, પુલો નથી, કનેક્ટિવિટી નથી, આદિવાસી વિસ્તારમાં સિંચાઈના પાણી પીવાની સુવિધા, સ્થાનિક લોકોને જીઆઈડીસીમાં કાયમી નોકરી, આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ફ્રીશીપ કાર્ડ અને 2022-23ની શિષ્યવૃત્તિ માટે આ વિસ્તારમાં ચાલતા નકલી દારૂ બંધ કરાવવા, ટ્રાઇબલ અને જંગલ ખાતામાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર, ટીએસપી સિંચાઈ વિભાગના નકલી કચેરીઓના ભ્રષ્ટાચાર, ટેટ-ટાટ પાસ ઉમેદવારોને કાયમી શિક્ષકોની ભરતી, નર્મદા ડેમમાંથી માનવ સર્જિત પૂરમાં રાહતની કામગીરી, NH56 દિલ્હી મુંબઈની 4 લેન લાઇન જમીન સંપાદનોનો વિરોધ, વન અધિકારી અધિનિયમ 2006ના પેન્ડિંગ દાવા વિરોધ, એસટીના ખોટા જાતિના પ્રમાણપત્ર, યુસીસી, મણિપુરની હિંસાનો વિરોધ, પેસા એક્ટ, અનુસૂચિ 5ની ચુસ્ત અમલવારી,
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નામે આદિવાસીઓનું વિસ્થાપન કર્યું છે તથા જળ, જંગલ, જમીન અને ખનિજો પરના આદિવાસીઓના અધિકારો આબાદિત રહે, અસ્તિત્વ, સંસ્કૃતિ, પરંપરા ટકી રહે તે માટે હું અને મારી ટીમ જાગૃતિ પણ ફેલાવી રહ્યા છે, જે સરકાર અને ભાજપના નેતાઓને ગમતું નથી. શરૂઆતથી લઈ અત્યાર સુધી ભાજપમાં લઈ જવાના અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. સામ, દામ, દંડ અને ભેદની નીતિ અપનાવવામાં આવી છે. હવે ખોટા કેસો કરીને મને અને મારી પત્ની શકુંતલાબેન વસાવા સહિત મારા પરિવારને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ અગાઉ પણ ભાજપના નેતાઓ દ્વારા મારું ધારાસભ્ય પદ રદ કરાવવા હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી હતી. લાંબી લડત બાદ મારી જીત થઈ. આદિવાસી સમાજમાંથી આવનાર આ નાની ઉંમરનો યુવાન સરકાર સામે સડકથી સદન સુધીના સામે બોલે છે એ ગમતું નથી. તેથી તેનો અવાજ દબાવી દેવા માટે ભાજપમાં રહેલા આપણા સમાજના નેતાઓ પણ જાણે છે, છતાં હાથો બની રહ્યા છે. સમાજ માટે ખુલીને બોલવા તૈયાર નથી. 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી નજીક હોવાથી 2019ની જેમ ચૂંટણી પતે ત્યાં સુધી ભાજપ સરકાર મને જેલમાં રાખવા મથે છે, પરંતુ મને દેશના સંવિધાન અને ન્યાય પ્રણાલી પર પૂરો વિશ્વાસ છે. અમારી સાથે ન્યાય થશે. અમે ટૂંક સમયમાં જ આપ સૌની વચ્ચે હોઈશું અને સૌ સાથે મળી આ તાનાશાહી સરકારને લોકસભામાં હરાવીશું. અમે આદિવાસીઓના સંતાન છે. અમારા પૂર્વજોએ અંગ્રેજોની ગુલામી પણ સ્વીકારી નથી. અમે ક્યારે ડરવાના નથી. આદિવાસી સમાજ અને ગુજરાતની પ્રજા માટે અમારો સંઘર્ષ ચાલુ રહેશે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું. ભલે હું જેલમાં છું, પણ હું મારા લોકો માટે લડતો રહીશ. ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાં આમ આદમી પાર્ટીની વિચારધારાઓને પહોંચાડીશું. આપ સૌનો સહકાર મળતો રહે એવી આશા રાખું છું. આપનો સહકાર એ જ મારી તાકાત છે. આ સમય દરમિયાન ઊભા રહેનાર તમામ સામાજિક કાર્યકરો, આગેવાનો સૌનો હું આભાર માનું છું. સત્ય પરેશાન હો सकता है, પરાજિત નહીં. જય આદિવાસી. હવે આજે આપણને જે બંને સીએમ મળવા માટે આવ્યા છે એમને પણ આપણા બધા વતી મેં વિનંતી કરી છે કે જલ્દીથી જલ્દી અમને ન્યાય મળવો જોઈએ અને શકુંતલાબેન અને ચૈતરભાઈ સાથે બીજા પણ લોકો છે એ લોકોને જેલમાંથી જલ્દીથી મુક્તિ મળે એ માટે મેં આપણા બધા વતી સાહેબને મેં રિક્વેસ્ટ કરી છે. એટલે આપણી વચ્ચે ટૂંક સમયમાં ધારાસભ્ય આવી જશે. चैतरभाई तुम संघर्ष करो. चैतरभाई तुम संघर्ष करो. लड़ेंगे लड़ेंगे. जोहार. भारत माता की, भारत माता की. इनकलाब, वंदे, जय जोहार, जय आदिवासी. चैतर तुम आगे बढ़ो. आज इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, जय जोहार. इतनी धूप में आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, हमारी बातचीत सुनने के लिए आप सब लोगों का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं. दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं. मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए हैं. हम अपना सारा कामकाज छोड़ के आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चैतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे. इन्होंने चैतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया,
आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे? बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बारे में चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है। बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? अगर बीजेपी कर देती तो आदिवासी समाज को चेतर वसावा की जरूरत नहीं थी। बीजेपी ने नहीं किया, इसी से चेतर वसावा को इनके लिए आवाज उठानी पड़ी। दोस्तों, बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। बीजेपी आदिवासी समाज से नफरत करती है। बीजेपी आदिवासी समाज से शुरू से उनके खिलाफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 30 साल से बीजेपी का राज है गुजरात में। आज यहां इतने आदिवासी गांवों से लोग आए हुए हैं, हजारों लाखों लोग आए हुए हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है।
अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहाँ के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे गरीब हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए। दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चेतन वसावा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चेतन वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चेतन वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा दोस्त। इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चेतन वसावा अपने लिए लड़ रहा, चेतन वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतन वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतन वसावा आदिवासी समाज के एक आदमी के लिए लड़ रहा है दोस्त। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतन वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतन वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा, तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतन वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसमें ये लोग दबाव डाल रहे हैं चेतन वसावा पे। मुझे संदेश आया था चेतन वसावा का, उसमें दबाव डाल रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतन वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतन वसावा ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा। चेतन वसावा ने कहा, मुझे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं कर, अपने समाज के साथ धोखा नहीं कर। वो चाहता तो ऐशोआराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था मंत्री में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा है। चेतन वसावा, चेतन वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको, चेतन वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ, क्या सारा गुजरात चेतन वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतन वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतन वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतन वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा
तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है दोस्तों। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव होंगे चेतर भाई बाहर आ जाएंगे। हमने उन्हें बाहर लाने के लिए बड़े बड़े देश के जो सबसे बड़े वकील हैं, देश के जो सबसे महंगे वकील हैं, बड़े से बड़े वकील आम आदमी पार्टी ने चेतर भाई और शकुंतला बहन के लिए किए। मेरे ख्याल से 20 तारीख को शकुंतला बहन की बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को शकुंतला बहन को बेल मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चेतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया, तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चेतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा, लड़ोगे? बीजेपी की यहां से जमानत जब्त होनी चाहिए, लड़ोगे? ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप चेतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हो। तो चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो बाहर रहे, हमें चेतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चेतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चेतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी दोस्तों। कल हम जाएंगे चेतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। लास्ट में मैं एक नारा बोलूंगा, एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चेतर वसावा छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रगीत માટે પોતપોતાના જગ્યા પર ઉભા